welcome back to the physics class. As we were doing the chapter before the periodic test, that was work, energy and power. Last topic we discussed, that was potential energy of a body. I hope you all understood the previous topic. Next, today we are discussing the topic transformation of energy. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एनर्जी का एक फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होना. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ energy into another form is called transformation of energy. It means suppose you have energy in the form of potential energy and it is converting into kinetic energy. This is called transformation of energy from one form to another form. Okay, there are some examples in which you can show the transformation of energy of a body. Let us discuss first example. First example of conversion of potential energy, conversion of potential energy into kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है. द लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज अ स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस. एक स्टोन है दैट इज लाइंग ऑन अ रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर की छत पे पड़ा है. हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट बिकॉज रूफ इज एट सम हाइट फ्रॉम द, सो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज रूफ, अ स्टोन इज देयर फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड, इट हैज पोटेंशियल energy. Okay, you decide when it fall down, जब ये नीचे गिरा, potential energy is converted into kinetic energy. Potential of the body has been converted into kinetic energy. Now the stone is falling, it has some velocity, so the energy due to velocity is kinetic energy. During the fall of a stone, potential is converted into kinetic energy. Okay, so this was the conversion of potential energy into kinetic energy. Another example is also there, that is of simple pendulum. Suppose you have a pendulum. Okay, pendulum वाली clock आपने देखी होगी, pendulum होता है उसमें. What is this? That pendulum is at rest at middle position. इसको मैंने पकड़ा, I raise this pendulum to a height, this to a position A. तो मेरे को इसको C से A तक लाने में some work has to be done. कुछ मेरे को वर्क करना पड़ा. मेरा वर्क कहाँ गया? That is converted into potential energy of the body. Suppose body has potential energy at A. When I release the body of pendulum from A and moving to C, so potential energy is converting into kinetic energy. Potential energy is converting into kinetic energy when it's going from A to C. Then C पे ये stop नहीं होगा, it will move to another position, that is B. So when moving to C to B, kinetic energy is converting into potential energy. Kinetic energy is converting into potential energy. Potential energy में convert हुआ ये. Okay. Next, when reach to B, totally potential energy is there. When again potential B to C, potential energy is converting into kinetic energy. Again C to B, C to A, that kinetic energy is converting into potential energy. Initially यहाँ कोई energy नहीं थी, but when ये rotate करने लगेगा तो C पे सारी kinetic energy हो गई. It means one type of energy is converting into another form of energy, that is called conversion of energy or transformation of energy. Kinetic energy into sound and heat energy. when the falling stone hits the ground, जब एक स्टोन हाइट से गिरा और हिट ग्राउंड को हिट किया तो आवाज आएगी गिरने की, और ग्राउंड अगर आप स्टोन को टच करोगे थोड़ा गर्म भी हो जाएगा. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. पहले पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक. देन काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी.
There are another examples also in which one type of energy is converting into another type of energy. हमारे घरों में LPG गैस सिलेंडर्स होते हैं. What is LPG गैस सिलेंडर्स? क्या करते हैं? केमिकल्स होता है उनमें, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. जब हम उसको जलाते हैं हीट एनर्जी मिलती है हमें और लाइट एनर्जी भी बनती है. सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिक बल्ब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आफ्टर दिस we are moving to the topic. The topic is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. It states that total energy of the body remains constant. मतलब नई एनर्जी बन नहीं सकती, पुरानी बनी हुई एनर्जी खत्म नहीं हो सकती. सिर्फ एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट it can be converted from one form to another. जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है. सिर्फ नई एनर्जी कोई बन नहीं सकती, पुरानी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती. सिर्फ एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो कंजर्व रहा ना. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहा? कंजर्व. लेट अस डिस्कस विद सम एग्जांपल्स. एक स्टोन की हम बात कर रहे थे. स्टोन एक हाइट पे था. इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 जूल. मतलब टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो 10 जूल. ये ए पॉइंट है एट ए पे टोटल एनर्जी दैट इज 10 जूल. पोटेंशियल 10 है, काइनेटिक 0 है. व्हेन इट रिलीज, जब ये गिरने लगा, पॉइंट बी आया कोई भी, हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल. देन 2 जूल कहाँ गई? दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. जो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी इज एट बी. अगेन टोटल एनर्जी इज 10 जूल. बट देयर इज सम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहेगा. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व. ग्राउंड को हिट करने से पहले, जस्ट पहले, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. इट मीन टोटल अभी भी कितना रहेगा? टोटल अभी भी 10 ही रहेगा. इट मीन्स एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. इसमें भी हम बात कर ले. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 10 जूल है, तो यहाँ सारे काइनेटिक 10 होगी. अगेन उधर जाएगा, फिर पोटेंशियल 10 हो जाएगी. इन बिटवीन किसी पॉइंट पे मान लो 5 जूल पोटेंशियल है, 5 जूल कहाँ चलेगी? काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. इट मीन्स एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. टोटल इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो सम है दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पावर. What is power? Power is called rate of doing work. Power is rate of doing work. मतलब कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर. अगर एक बॉडी है ए, वो किसी एक वर्क को 10 सेकंड में कर रही है. बी बॉडी है, वो उसी वर्क को 5 सेकंड में कर रही है, तो इसका मतलब बी की पावर ज़्यादा, क्योंकि वो उसी वर्क को कम टाइम में कर रही है, तो उसकी पावर क्या हुई? ज़्यादा. तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब कितने टाइम में एक बॉडी कितना वर्क कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर. तो पावर का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें, पावर का फॉर्मूला बनता है दैट इज वर्क डन. बॉडी ने कितना वर्क डन किया, बाय में टाइम टेकन, कितना उसको टाइम लिया. अल्टीमेटली ये आता है कि 1 सेकंड में बॉडी जितना वर्क कर रही है दैट इज कॉल्ड इट्स पावर. पर सेकंड में बॉडी जितना वर्क कर रही है दैट इज कॉल्ड इट्स पावर. अल्टीमेटली
उसको पावर बोला जाता है। ओके, सो पावर इज वर्क डन बाय में टाइम। व्हाट इज पावर? दैट इज वर्क डन बाय में टाइम। सो वर्क डन इज W, टाइम इज T, सो पावर इज P, सो व्हाट इट बिकम्स? वर्क डन बाय टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला बन गया? दैट इज वर्क डन बाय टाइम। एंड कोई भी बॉडी जितना वर्क करती है उसकी बॉडी से उतनी ही एनर्जी यूज हो जाती है। कोई बॉडी जितना वर्क करेगी उसकी बॉडी से उतनी एनर्जी यूज हो जाएगी। इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। सो पावर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज एनर्जी बाय टाइम। पावर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज एनर्जी बाय में टाइम। So power can be written as work done by time or energy by time. Now we are discussing the SI unit of power. SI unit of power. Power की जो SI unit है, what is this? Power is work done होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड। पावर की SI यूनिट होती है अभी वॉट। पावर की SI यूनिट क्या है? वॉट। What is the SI unit of power? So watt is joule per second. 1 watt is equal to 1 joule per second. Watt का सिंबल W होता है, जूल का J, टाइम सेकंड का S. So 1 watt is equal to, अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 1 जूल का वर्क कर रही है तो इट मीन्स इसकी पावर भी 1 watt है। इसका मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में जितना वर्क कर रही है दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। सो अगर एक बॉडी एक सेकंड में 1 जूल का वर्क कर रही है इट मीन्स इट्स पावर इज 1 जूल। सो इट्स पावर इज 1 watt, सॉरी 1 watt पावर है 1 joule per second. If it is doing 1 joule of work or consuming 1 joule of energy per second, then its power is called 1 watt. Okay. Now some bigger units are also there, that is kilowatt. Kilowatt is 1000 watt. 1 kilowatt is 1000 watt. Okay, bigger unit also there. Another big unit होती है that is 1 horse power. Horse power is 746 watt को हम एक horse power बोलते हैं। 746 watt को क्या बोला जाता है? एक horse power. These are all the, this is the SI unit watt. Bigger units are also there, but instead of these another units are there, that is commercial unit of energy. What is commercial? First of all, पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर का फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी बाय में टाइम। इफ पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम देन एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। देन व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ओके, इट मींस एनर्जी अगर आपने किसी कोई भी ऑपरेटर है आपका, उससे आपने ये देखना भी ये कितनी एनर्जी यूज करता है, उसकी पावर आपको पता और कितने टाइम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो तो आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। If you are taking power in watt and time in seconds, then energy will be in joules. अगर आप पावर की यूनिट वॉट लेते हो बॉडी की और टाइम सेकंड में लेते हो तो एनर्जी जूल में आएगी। बट ये और जूल इसकी ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट आएगी। बट अगर आप पावर लेते हो किलोवाट में, टाइम लेते हो आवर में, पावर किलोवाट और टाइम किस में आएगा? आवर्स में, देन एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर किलोवाट, टाइम आवर्स, तो एनर्जी विल बी किलोवाट आवर। एनर्जी विल बी किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर is the commercial unit of energy. This is commercial unit of energy. इसको एनर्जी की कमर्शियल यूनिट कहा जाता है। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इट मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू इंटू 1 आवर। अगर 1 किलोवाट पावर का ऑपरेटर्स आप 1 घंटे के लिए यूज करते हो तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो यूज कर जाएगा। ओके, इसके बाद हम इसको अगर ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें, 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 10 to 3 वाट लिख सकते हैं हम उसको। 1000 का मतलब क्या होता है? 10 to power 3। और आवर्स को सेकेंड में काउंट करो, एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी वाट इंटू सेकेंड, जूल बन गया। 36 लाख जूल्स
इट मीन्स 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल्स के बराबर होता है। सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी जो होती है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट आपसे पूछी जाए तो किलोवाट आवर में आंसर निकालना है, पावर किलोवाट में लेनी है, टाइम आवर्स में। नेक्स्ट अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए तो आंसर आपने जूल में कैलकुलेट करना है। सो दिस वाज द चैप्टर दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यूमेरिकल्स अभी इसके रहते हैं। इन द अपकमिंग लेक्चर्स ऑन टुमारो we will do the numerical based on this chapter. Okay, till then thanks and have a nice day.